سب سے پہلے میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے پیارے بھائی پاسٹر شہباز صاحب کے لیے، ان کی چرچ انتظامیہ کے لیے جنہوں نے ہمیں اپنے چرچ میں دعوت دی تاکہ ہم آپ کے ساتھ خدا ان کے کلام کو بانٹ سکیں۔ ہم اکثر ان چیزوں میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں جن کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو چیزیں کرنے والی ہیں ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ اور یاد رکھیں، خدا کی حضوری میں کبھی بھی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں زندگی میں۔ ہاں، البتہ وقت ضائع ہوتا ہے چوک پر بیٹھنے میں، وقت ضائع ہوتا ہے کسی غلط جگہ پر بیٹھنے میں، وقت ضائع ہوتا ہے ٹک ٹاک دیکھنے میں، وقت ضائع ہوتا ہے مووی دیکھنے میں، اور وقت ضائع ہوتا ہے گپ شپ لگانے میں۔ اور حضرت داؤد زبور نویس اپنے زبور میں لکھتے ہیں، جو ایک دن گزرے تیرے گھر دے اندر ہزاراں دناں نالوں ہوتے ہیں بہتر۔ تو اب مجھے بتائیے، آپ جب یہاں پہ خدا کی حضوری میں ہیں، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ محفوظ ہو رہا ہے؟ ذرا بتائیے۔ جو کہہ رہے ہیں ضائع ہو رہا ہے وہ ہاتھ اوپر کریں۔ ضائع ہو رہا ہے وقت؟ آپ کا وقت محفوظ ہو رہا ہے تو اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیجیے۔ پریز گاڈ۔ آئیے گھڑی کی ٹک ٹاک کے پیچھے چھوڑ کر اب خدا کے کلام کی طرف توجہ دے۔ کلام میں لکھا ہے، سنو اور سمجھو۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ سیٹ آپ اس کو بات، یسوع کے منہ کی باتیں سنیے، اور کیا ہی خوشنما ہے ان کے کان جو اس کی سنتے ہیں۔ اور سنیے، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو سننے کا بھی اجر موجود ہے۔ تو تیار ہے سننے کے لیے؟ اپنے کانوں کو ذرا ایسے ایسے کریں پلیز، شاباش۔ کیونکہ بھائی صاحب حقیقت ہے، وہاں پہ لکھا جس کے کان ہوں وہ سنے کا روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا ذرا کانوں کو ادھر میری طرف دیکھنا ہے، ایسے ایسے کریں، شاباش۔ پیچھے لیڈرز بھی کریں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تیار ہے؟ پھر اب تالی بجائیں خدا کے کلام کے لیے۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ 15واں باب ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، 15ویں باب کی 21ویں آیت۔ ایک مائک میم نسرین کو دے دیں آپ، وہ تبلے والے دے دیں۔ بڑی ہی بابرکت اور پرفضل باتیں۔ ایک دفعہ نا ایک کوڑی یسوع کے پاس آیا اور یسوع پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ کو پتہ یسوع پہاڑ پر کیا کرنے جاتے تھے؟ شاباش۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع نے ساری رات دعا میں گزار دی، اور جب صبح تڑکا ہوا اور یسوع پہاڑ سے نیچے اترے تو آپ کو بتاؤں وہ کوئی شخص کہاں تھا؟ بالکل اسی جگہ پر جہاں سے وہ یسوع کو چڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا ساری رات۔ اور یاد رکھے، جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، تو جب آپ اس کی حضوری میں لینے کے لیے آتے ہیں تو پھر ویٹنگ لسٹ میں پڑے رہیے، خدا ہماری سننے کے لیے تیار ہے۔ بڑی خاص بات ہے جی، میں سی پڑھیے گا۔ یہاں پہ کہانی ہے، یہاں پہ وقت کا ہی امتزاج ہے، وقت کا ہی ہیر پھیر ہے۔ دیکھیے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا۔ اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔
एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। ये आई है यीशु के पीछे और इसका अपना जाती कोई मकसद नहीं है। कलाम में लिखा है वो अपनी बेटी की शिफा के लिए दौड़ी और मारी मारी फिर रही है और अब वो यीशु के पास आई है। जरा ध्यान से सुनिए। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। आप ये कितना मुश्किल होता है जब आपकी बात का कोई जवाब ना दे। क्यों भाई जान, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ है साजिद। अगर साजिद आपकी बात का जवाब ना दे तो आपका टेम्पो ऊंचा हो जाएगा। ओए साजिद मैं पागल हाँ और मैं तेनू इन्नी देर का वादा दे दिया जी। ये कितना अजीब लम्हा होता है जब आपकी कोई बात पे ध्यान ही नहीं देता। और सुनिए कलाम में लिखा है वो सिफारिश कर रही है यीशु मसीह से कि मेरी बेटी बदरू गिरफ्ता है, वो तकलीफ में है, और लिखा यीशु ने ध्यान ना दिया। इसमें भी कोई खास बात है, सुनिए जरा। हाँ जी। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की। अब वो वहां से निकली और यीशु के शागिर्दों के पास आ गई और उनसे सिफारिश की, गुजारिश करने लगी। पढ़िएगा जरा कि उसे रुखसत कर दे, कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती क्योंकि वो अब तेरा पीछा छोड़कर हमारे पीछे चलाती है। असल में वो कहना ये चाहते हैं इनू मगरूला पंजाबी जदाई मतलब जी, क्योंकि वो गैर कौम से थी। कलाम में लिखा है वो गैर अक़वाम से थी और उनके इल्फाज से वो बदबू नजर आ रही है। यीशु इसको रुखसत कर दे, ये हमारे पीछे चलाती है। ये रिक्वेस्ट नहीं थी, सुनिए, ये इल्तिजा नहीं थी, ये यीशु मसीह को ये कहना या बार बार करवाना चाहते थे कि ऐ साढ़े पीछे एवं ही लगी। तो सुनिए आगे चलते हैं। सिफारिश आई है, बाद लोग सिफारिशों पे ही गुजारा कर रहे हैं। मुकद्दस पतरस हमारी सिफारिश कर जी, मुकद्दस पौलुस हमारी सिफारिश कर। वहां पे सिफारिशें नहीं चलेंगी, कलाम मुकद्दस में सिफारिश चलेगी तो वहां पे जहां पे सिर्फ मेरा और आपका यीशु होगा, बाकी किसी इंसान की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जरा पढ़ दीजिए। हाँ जी। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा। यीशु ने, जो कि उनके अंदर मजहब कूट कूट कर भरा हुआ था, यीशु दो तरफा बात कर रहे हैं। सुनिए, वो गैर कौम से आई हुई औरत को भी रद्द नहीं करना चाह रहे और जो मजहबी ठेकेदार हैं उनको भी सिखाना चाह रहे हैं। और कलाम में लिखे यीशु ने कहा मैं तो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा कहीं भेजा। अब सुनिए, दो दफा हो गई है। शाबाश, पढ़े। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। गई वहां से? बोल दे नहीं गई जे जी। आज अगर किसी की बात का आप जवाब ना दें तो रिप्लेसिंग पास्टर रखे हुए हैं जी। मैंने में कई बार कलीसिया धमकियां लाती है, पादरी साहब तुसी नहीं तो फिर होर कोई जी। जरूर आप किसी और का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन सुनिए कलाम में लिखा है इसका जो वक्त है वो यीशु मसीह के चौगिर्द ही गुजर रहा है। पहले वो आई है, उसकी बात नहीं सुनी गई, फिर उसकी सिफारिश भी रद्द कर दी गई है। एनजीए भाई जान, वो वहां से गई। मिसिस जरा पढ़ दे खड़े होकर, क्या लिखा है? बजाय इसके कि वो गुस्से होती, बजाय इसके कि वो अपनी भवें चढ़ाती, कलाम में लिखा है उसने यीशु को सजदा किया। हालेलुया कहना तो जरा ऊंची आवाज में कहो सारे। मैं ऐसा नहीं हूं कि पीछे कहूं कि हालेलुया कहे, मैं ऐसा हूं कि हालेलुया अंदर से निकले। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। याद रखें वो यीशु के पीछे से हटी नहीं और लिखा है बजाय इसके कि वो वहां से भाग जाती, लिखा है वो यीशु को सिजदा करती है। गौर कीजिए, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और जब उसने उसको सिजदा किया और कहा ऐ खुदावंद मेरी मदद कर, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे जी? कानू लाओ। ओ सुन रहे जी?
यीशु क्या कह रहे हैं, जरा दोहरा दीजिए मिसी। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब ये तीसरी दफा ना कहे, थर्ड टाइम। उसने कहा हाँ खुदावन, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। आप सुन रहे हैं? ओ सुन रहे जे उन्नी उच्ची हाँ जी कहना जे पले परले पल्ले जो पता लगे ना। हाँ जी सुन रहे हैं ना? और कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। उसका जवाब क्या है? हाँ मालिक, कुत्ते भी मेज से ही खाते हैं। आज मैं कुत्ता ही सही, आज मैं रद्द की हुई सही, लेकिन मैं टुकड़ा लेकर ही जाऊंगी, मुझे और कहीं नहीं जाना। मैं वक्त तेरे हुजूर की गुजारूंगी, मेरा वक्त जाया नहीं हो रहा। आज का ईमानदार हो और आज की आप डॉक्ट्रिन की बात करें तो लोग एक दफा सुनते हैं, दूसरी दफा भज के होर गिरजे बढ़ जाते हैं। 32 साल का ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते है। भाईजान ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ, ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਆਇਓ ਜਰਾ, ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਕਿ ਛੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਛੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ क्यों भला? ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। अब वो मेदों का मियार नहीं। याद रखें, जो असल खुराक है उसको हजम करने वाले मेदे आज मांग पड़ चुके हैं। वैसे ही ईमानदारों की हालत बैठ जाइए। जब असल कलाम की बातें होती है ना, भाई जी कलाम तो बड़ा अच्छा सी, पर ऐ जिहड़ी गल है ना, वो जी ऐ गल है ना, वो शैतान नाल हो जाए। लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। ये तीसरी दफा था। सिजदे में पड़ी है और सिजदे में पड़ी पड़ी कहती है, हाँ मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े ही हम खाते हैं, तो मुझे कुत्ता ही समझ, मैं आज तुझसे टुकड़ा लिए बगैर। और आखिरी बात करेंगे। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस पर यीशु ने जवाब में से, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ओह हालेलुया, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालांकि ईमान का कोई लेवल नहीं है, ईमान का कोई पैमाना आज तक ऐजाद नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा, तेरी बात जो तूने की है इससे तेरे अंदर का ईमान मुझे नजर आ रहा है। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਆਬਾਦਤ ਚ ਕੰਨਾਂ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆਵੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। क्या हम अपने ड्रामे का टाइम आज खुदा को दे सकते हैं? हाँ? एक हाथ ही लिया है, बाकी की गल इधर बखाओ, हम अपना टाइम खुदावंद को दे सकते हैं? याद रखे, खुदावंद को बचा कुचा टाइम नहीं चाहिए। हैं? एक बंदा कहना, भाई साहब मैं ते इंज करके हिक ते कलाम रखना ते रात नूं सौ जाना। बड़ी इज्जत कर रहे कलाम। कलाम ये कहता है एक तरह के सौ जा जी। कलाम में लिखा है, मैंने इसको दिल में रख लिया, दिल में, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। एक ते रखा तो दे अंदर जान नहीं दिया। मैं सराने रख के सौ जाना, मैंने रात को डर लगता है। याद रखें, एक कल मैं परसों घर में था, एक फैमिली के अंदर, तो उन्होंने एक आयत लेकर बच्चे के, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਨਾ ਭੈੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਵੀਜ਼ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲੇ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਲੈ, ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਲੈ।
क्या होगा इस हैं ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ आइए एक बात करता हूँ साधु सुंदर सिंह स्वामी एक खुदा के बड़े अजीम सूरमा खादम हुए हैं इंडिया के अंदर उनकी किताब में मैंने पढ़ा वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं सफर कर रहा था ट्रेन के अंदर और मेरे सामने एक जादूगर बैठ गया और मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ रहा था और उस जादूगर ने अपनी जो शक्तियां थी वो इस्तेमाल की और उनसे कहा कि इस बंदे पे हमला करो ये मेरे ध्यान ही नहीं करन दिया ये अपनी किताब ही पढ़ी जा रही है कौन है भाई बदलुआ गई हमला करन लगियां ते जल गई सर्दियां वापस आईया आंदियां ने भाई वो बड़ा मुश्किल है भी उत्ते हमला करना उन्हें कहा परे दफा वो दूजियां लईयां वो तो पावरफुल ताकतवर वो भी सर्दियां वापस आईया सा एंड वाली ताकत इस्तेमाल कर लगा ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਬਦਰੂ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਸਨੇ साधु सुंदर सिंह से कहा भाई जान की पढ़ रहे हो ने क्या खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं उसने कहा मुझे दे जरा उनकी मुश्किल सी भाई उसने वो खुदा का कलाम उसके हाथ में दे दिया ते नाल ही बदरू का चल हुण हमला कर आप जानते क्या हुआ बदरू के साथ वो उससे भी भयानक कंडीशन में वापस आई चीखती हुई कहती है जो किताब उसके हाथ में है वो उसके दिल के अंदर उतरी हुई है आप आयत बांधने से नहीं इस कलाम को अंदर रखने से आप बच सकते हैं इसलिए दाऊद को तजर्बा है वो कहता है मैंने दिल में रख लिया असी परशती पे सजाया है सियालकोट में मैं एक फैमिली में था मैंने कहा बहन जी आप अपने अगर से जरा बाइबल लाइए वो बड़ी प्यारी खूबसूरत बाइबल लाई साफ सुथरा पेज और मैंने जब खोला ये पादरी साहब वेख लो नवी दी नवी जे 10 साल हो गए ने हैं तो नवी रहनी है जो पढ़नी नहीं जी याद रखें हमारे पढ़ने से खुदा का कलाम पुराना नहीं होता हमारे लाइनें लगाने से खुदा के कलाम की तौहीन नहीं है हाँ अलबत्ता खुदा के कलाम की तौहीन तब है जब तू उसको कबूल ना करे अगर कबूल करे इस औरत की तरह तो सुनिए यीशु ने कहा जा जो तू चाहती है ना जरा पढ़ते हैं इसको खत्म कर रहा हूं मैं प्लीज जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो योर चॉइस जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो वो क्या चाहती है और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई ये है उसकी ब्यूटी उसका प्यार उसका लव आप यहाँ बैठे बैठे कहें पादरी साहब मेरी बहन अमेरिका में है आप उसके लिए दुआ करें मेरा यीशु अमेरिका में भी मौजूद है आप मुझे कहें मेरी बहन जड़ावाला में है मेरा यीशु जड़ावाला में भी मौजूद है आप मुझे कहें मेरी बहन अफ्रीका में है खुदावंद अफ्रीका में भी मौजूद है और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है याद रखें ये खुदा का कलाम है ये मामूली किताब नहीं है जल्दी जल्दी कर लें जल्दी तो करेंगे हम लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि सुनाए बगैर चले जाएं याद रखें शैतान हमारे वक्त को ज़ाया करता है खुदा हमारे वक्त को महफूज करता है जब हम खुदा के जुर वक्त गुजारते हैं बेटे आप जरा दोनों बहनें आइए यहाँ पे थैंक यू जीसस यहाँ पे आइए इधर आइए सामने खड़े हो आप जब घर से है किस सवारी से है रिक्शे वाला को वाकिफ है आपका आपके साथ आपका बाप भाई कोई आपके साथ था आप आइए जरा शाबाश शाबाश आप किस सवारी से हैं आपका रिक्शे वाला को वाकिफ है आपके घर से कोई बाप या भाई आपके साथ है तो फिर क्या सोच कर आप खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए क्योंकि वो सभी रास्ते दिखाता है और उस भाई ने हमारी बहुत मदद की मैं खुदावंद के नाम को अप्रिशिएट करती हूँ आमीन सोच रहे हैं आप वाइट यंग बेटी हैं
खूबसूरत हैं, ये भी किसी वालिदैन की बच्चियां हैं, पर इनके अंदर खुदा का कलाम है। खुदा हिफाजत कर सकता है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। तो जब खुदा हिफाजत कर सकता, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। पादरी साहब पता नहीं करो जान छोड़े नहीं, याद रखें, खुदा के कलाम को सुनने के लिए बेदार रहें, बेचैन रहें। देखिए मेरी बात बैठिए, इन बच्चों के लिए तालियां बजा दें। ये खुदा के हजूर में उसका कलाम सीखते हैं, हमारे बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। याद रखें, मैं इनको जीना सिखा रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ कि हमें हमारे पीछे प्रोटेक्शन है फरिश्तों की, हमारे साथ फरिश्ते ट्रेवल करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और याद रखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक कोई खुदा का कलाम सुनने गया हो और उसको नुकसान पहुंचा दिया गया हो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा में डाकू ने घेर लिया और कहते निकाल दो जो कुछ है, तो बैग च बाइबल मुकद्दस सी। मैंने कहा खजाना है ले जा, लेकिन एक शर्त है, इसको पढ़ना है। और मुझे आज तक याद है कि वो शख्स बाइबल मुकद्दस को ले गया, और मेरा ये दिल कहता है उसके बाद वो डाका नहीं मारेगा, उसके बाद वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में खुदा का कलाम है। आइए खुदा के कलाम की इज्जत करें, जब भी मौका मिले वक्त की टिक टिक को छोड़कर खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। प्रेज़ गॉड। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, लवली जीसस, लवली जीसस।